ٹھیک ہے. ہمارا اگر اسٹارٹ دیکھیے آپ لندن کا جو ہوگا تو اس میں کہتے ہیں ہم دنیاوی ہیں، اس لیے کہ جو اپنے وطن کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ. اللہ محمد والے محمد. دتیانے والے یہاں رہے 200 برس کے بعد بھی سیف پورے والے دتیانے نہیں بنیں گے. جیسے آج تک عرب و عجم میں لڑائی یہ مہاجر ہے اور یہ عرب ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں. تو پھر اپنے دروازوں پہ لکھو نا دتیانے والوں کا مکان ہے. والے محمد یا علی سب لکھیں گے. یا علی. اچھا نہیں لکھیں گے، چلو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور کی جگہ میں متوجہ ہوئے. بچپنا تھا آپ نے مارا نہیں، طاقت کم تھی آپ کی، قد چھوٹا ہو گیا تھا آپ کا، دماغ کم ہو گیا تھا، زبان کمزور ہو گئی تھی، ذہن کمزور ہو گیا تھا، ہتھیار کم ہو گئے تھے، نہیں مارا. کیوں نہیں مارا؟ بچپنا ہے، سماج کیا کہے گا. پھر لڑک پر آیا، نوجوانی آئی، پھر نہیں مارا آپ نے. آپ کا ہتھیار کم ہو گئے تھے، طاقت کم ہو گئی تھی، عزت کم ہو گئی تھی، زبان کمزور ہو گئی تھی، نظریں کمزور ہو گئی تھی، ذہن کمزور ہو گیا تھا. کچھ نہیں، باوجود تو ہے، پھر نہیں مارا آپ نے. اب بڑھاپا آیا، اب مار دیا ہوتا، اب بھی نہیں مارا آپ نے. اب جن کو یہ تینوں زمانے سمجھ میں آ جائے انہیں علی کی خاموشی سمجھ میں آ جائے گی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ. اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو کیوں نہیں مارا، ارے دماغ میں بچپنا تھا، بیٹھ گیا بیٹھا رہے، جب دماغ سے اتر جائے گی تو چھوڑ کے بھاگے گا. پھر اس سے پوچھا اسے کیوں نہیں مارا، کہ یہ لڑکپن میں ہے. پھر اسے پوچھا اسے کیوں نہیں مارا، کہ بوڑھا ہے. تیر سے زیادہ جوان کہا تھا، ابا مجھے چن لیا گیا اس لیے کہ میں سب سے بڑا تھا. ابا نے تماچا مار کے کہا احمد کہاں سے بڑا ہو گیا، ابھی تو تیرا باپ زندہ ہے. محمد والے محمد یا علی. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو زندگی میں 3 زمانے ہیں. کتنے زمانے ہیں زندگی میں؟ 3. پہلے زمانے کا نام بچپنا، دوسرے زمانے کا نام لڑکپن جوانی، اور تیسرے زمانے کا نام بڑھاپا. بچپنا تھا، سب نے کہا بدتمیز ہے شریف ہے. بچپنا ہے. جوانی آئی، سب نے کہا احمق ہے، جاہل ہے، بدتمیز ہے، پتہ نہیں. بڑھاپا آیا تو عقل سٹیا گئی، بوڑھا ہو گیا. اب اسے کیا کہیں بوڑھے کو. اب تینوں زمانے کے بعد جب انسان کے گزر جاتے ہیں، بچپن، لڑکپن، بڑھاپا، چوتھے نمبر پہ کیا آتی ہے؟ موت. اور وہی برحق ہے. سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے بچپن تھا حق نہیں تھا، لڑکپن تھا حق نہیں تھا، بڑھاپا تھا، لیکن جیسی چوتھی باری آئی سب نے کہا یہ تو حق ہے، اس کا تو آنا حق ہے، یہ تو آئے گی، یہ تو لے کے جائے گی، یہ تو آئے گا، یہ تو لے کے جائے گا. پتا چلا جب ہر اعتبار سے حدیث نمبر پہ ہے تو ہم کیا کریں. سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات سمجھ میں نہیں آئی بھائی. میں نے پوری تاریخ سنائی آپ کو، میں نے کسی کو کچھ کہا نہیں، میں نے کسی کا نام نہیں لیا. میں نے بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا ہے، اور اس کے بعد موت کیا ہے؟ برحق ہے. اچھا آپ لوگ کہتے ہیں اب یہ تھوڑا سا جملہ آپ لوگ سے بولیے گا کیونکہ آپ نے مدرسے کی روٹی کھائی اس لیے جلدی سے سمجھ جائیں گے. آپ بچپن سے ایک بات سنتے آ رہے ہیں کہ علی حق ہے. یہ سنا ہے کچھ اور؟ نہیں سنا. علی حق ہے. میں کہتا ہوں کہ علی حق نہیں ہے. ہماری احمد اگر غصے مار تو ہمارے گھر میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. علی حق ہے. بے شک. میں کہتا ہوں کہ علی حق نہیں. کیوں بھائی مولانا کیوں کہتے ہو علی حق نہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس صرف ایک حدیث ہے اور اس حدیث پہ کہتے ہو کہ علی حق ہے. دوسری حدیث آپ گنجائش ہی نہیں رکھتے سننے کی، نہ اس پہ عمل کرنا چاہتے.
ایک ہی حدیث تو سنتے ہیں آپ بچپن سے، الحق کو مال علی والعلیو ملا علی کے ساتھ ہے، علی ساتھ حق کے ساتھ ہے، حق نہیں ہے۔ اب آپ میرے ساتھ ہیں، آپ فصیح عدد تو نہیں ہوں گے، جتنے زور لگا لیجیے آپ، بے شک اور میں آپ نہیں ہو پاؤں گا، کیوں؟ ساتھی تو ہے۔ اچھا پھر یہی بات ہے کہ ساتھ ہے تو پھر ایک آپ کیا تلقین پڑی جاتی ہے جب دفناتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں آپ اس میں؟ الجنت حق، اور اس کے بعد کیا کہتے ہو؟ والنار بڑا جملہ کہہ دیا بھائی، میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا۔ آپ ہی تو کہتے ہو جب بات سناتے ہو تلقین، جنت حق ہے، اور کیا کہتے ہو؟ والنار حق، یا تو ہٹا دی تلقین سے، یہ رفیق نہیں غلط پڑھتے ہیں۔ والنار حق اور جہنم حق ہے، تو معاف کیجیے گا، ہم علی کو اس برابر نہیں سمجھتے، نہ ہم جنت کے برابر میں علی کو رکھتے اور نہ اس برابر میں علی کو رکھتے۔ تو پھر علی کیا ہے سرکار؟ علی ہے امام۔ کیا ہے علی؟ امام۔ امام۔ ابھی آپ اور ہم ساتھ آئے دونوں، تب میں میرے کو غور کیجیے گا، آپ اور ہم دونوں کیا ہے؟ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے، سلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم دونوں ساتھ آئے، لیکن ہم مولوی صاحب ہیں اور آپ مولوی صاحب نہیں ہو، تو دونوں ساتھ ہیں کہ نہیں؟ تو نماز آپ پڑھائیں گے کہ ہم؟ ہاں، تو آپ آگے کھڑے ہو گئے پیچھے؟ پیچھے۔ ختم ہو گئی بات۔ یہی پیغمبر نے بتایا کہ علی کیا ہے۔ یہ قوم علی کو حق نہ سمجھے، علی امام حق ہے۔ کیسے؟ غدیر میں جب خطبہ تمام ہو گیا تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، پروردگارا اب تو ادھر ادھر موڑنا، جدھر جدھر علی جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ہم کو ادھر ادھر موڑنا، جب علی خدا کے طرف موڑنے کا کیا مطلب تھا؟ اللہ کا رسول بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو علی کسی کا تابعدار نہیں ہے مخلوق میں، یہ سب کا امام ہے۔ پھر حدیث سامنے آتی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہل ہے کی موت مرا۔ بے شک بے شک۔ قرآن کی ایک آیت آتی ہے، کیفا جئنا کیسا لگے گا کل امتی، جب ہر ایک امت کو حاضر و شاہد بنا کر لائے گا اپنے نبی کو، اور پھر سب کے اوپر آپ کو گواہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 49 اور کر لیجیے گا، کیفا جئنا کیسا لگے گا جب ہر ایک امت کو اس کے نبی کے ساتھ گواہ بنا کے بلایا جائے گا۔ کیا شہید شاہد نہیں ہے؟ شہید، اور ہم تمام کے اوپر آخری نبی کو شہید بنائیں گے۔ بے شک۔ خدا کرے میری بات پہنچ جائے، میری محنت ضائع ہو رہی ہے اس وقت۔ اللہ کہہ رہا ہے کیسا لگے گا جب ہر ایک امت کو اس کے نبی کے ساتھ اس کا نبی گواہ بنا کر بلایا جائے گا، اور ہر نبی کے اوپر گواہ بنایا جائے گا آخری نبی کو۔ کس کو بنایا جائے گا؟ آخری نبی کو۔ شہیدن، شہید، شہید کسے کہتے ہیں بھائی؟ شہادت دینے والا۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہادت دینے والا۔ آپ نہ کہنا کہ مولوی فصیح حیدر عدالت میں شہید ہو گیا، فاتحہ مت پڑھ دینا، عدالت میں گواہ ہو گیا۔ شہید کے معنی ہے گواہ۔ اب کہیں گے فوراً حضور شہید کو گواہ نہیں کہتے، شاہد کو کہتے ہیں، تو شاہد بھی گواہ ہے اور شہید بھی گواہ ہے۔ اب جملے کا لفظ اٹھائیے گا، شاہد بھی گواہ ہے اور شہید بھی گواہ ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔
शाहिद उसे कहते हैं जो सुन के गवाही दे, वाह जो दबाव में गवाही दे, वाह जो 1500 के चक्कर में गवाही दे। वाह गवाह नहीं किया, अरे कैसी गवाही देनी है? कहा भाई मैंने मर्डर नहीं किया, ये गवाही दो। कल 5 लाख रुपए, चला जाऊंगा जेल में, बच्चे आराम से रोटी खाएंगे 2 साल तक, आ जाऊंगा छुप के, मेरा क्या बिगड़ा? तो ये भी गवाह है, लेकिन इसने मर्डर की कंडीशन समझी नहीं, इसने देखा नहीं, ये चश्मदीद गवाह नहीं है। अल्लाह का राज कैसा लगेगा जब हर नबी को हर उम्मत के ऊपर उसके नबी को शहीद बनाया जाएगा, और कैसा लगेगा जब तमाम नबियों पर आखिरी नबी को शहीद बनाया जाएगा। और फिर अल्लाह से हमने पूछा तेरे नबी का शहीद कौन है, ये तो बता, किसको सब पर गवाह बना रहा है? फिर कुरान ने बढ़ के बताया कुल कफा बिल्लाह शहीदन, ए मोहम्मद लोगों से कह देना आपकी गवाही के लिए एक तो मैं अल्लाह काफी हूँ, एक वो काफी, जुमला सुनिएगा, एक वो काफी है कुल कफा बिल्लाह शहीदन, एक तो मैं गवाह अल्लाह गवाह काफी हूँ, और एक वो काफी है वइंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब कायम है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह। तो मैं गवाही के लिए काफी हूँ, और एक वो गवाही के लिए काफी है जिसके पास पूरी किताब कायम है, पूरी किताब कायम है, पूरी किताब कायम है। बेशक। का मतलब समझते हो क्या है? पूरी का मतलब समझते हो क्या है? जिसमें कोई गुंजाइश न रह जाए। अब ये ना कहा जाए ये किताब पूरी थोड़ा ही है, अभी तो बहुत चैप्टर रह गए, अभी तो बहुत अध्ययन रह गए, अभी तो बहुत सबक रह गए, अभी तो बहुत पाठ रह गए, अभी तो बहुत लेसन रह गए। कंप्लीट किताब हो, ये अल्लाह का है तो मैं गवाह हूँ, और एक वो गवाह है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। ये शाहिद नहीं है, वाह बेशक ये शाहिद नहीं है, ना अल्लाह शाहिद और ना वो शाहिद, इसके बाद पूरी किताब का इल्म है। ये दोनों है शहीद। बेशक। शाहिद कहते हैं झूठे गवाह भी हो सकते हैं, मक्कार को भी कह सकते हैं, धोखेबाज को भी कह सकते हैं, रिश्वत लेके गवाही देने वाले को भी कह सकते हैं, जालिम की हिमायत में गवाही देने वाले को भी कह सकते हैं। शाहिद कहते जो सुन के गवाही दे, जो समझ के गवाही दे, जो कयास पे गवाही दे। लेकिन शहीद उसे कहते हैं जो चश्मदीद गवाह हो। क्या हो? अरे नहीं किया आपने, चश्मदीद गवाह हो। तो एक तो अल्लाह चश्मदीद गवाह है, एक वो चश्मदीद गवाह है कि जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अब पूरी उम्मत है मुस्लिमा, मुझे मुसलमानों में से वो इमाम, नबी, रसूल, सिद्दीक, गनी, फारूक किसी को मिला कर दिखाओ। जब नबूवत को ताजे रिसालत पहनाया जा रहा था, वहाँ कोई दूसरा भी गवाह था जो आंखों से देख रहा था कि नबूवत का ताज पहनाया जा रहा है। अब कैसे पता चले कि पूरी किताब का इल्म किसके पास है? तो फिर तेरा जब आई है, पैगंबर गए हैं, दुआ और सलाम के बाद आने वाले ने कहा दुआएं पढ़ो, और फिर दुआएं पढ़ी, साईं ने दुआएं से बेहतर इंजील पढ़ी, साईं ने इंजील से बेहतर ज़बूर पढ़ी, साईं ने ज़बूर से बेहतर। अब जो कुरान पढ़ा तो वो मुझ जैसा, यानी मोहम्मद ने फरमाया मुझ जैसा कुरान पढ़ा, और कुरान न तौरात की तरह है, न ज़बूर की तरह है, न इंजील की तरह है, चौथे नंबर पे कुरान है। कुरान कयामत तक के लिए कंप्लीट है। अल्लाह ने जिसे पूरी किताब में देकर भेजा, उसी से पढ़वाया भी, उसी से बतलाया भी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रहे, शादो आबाद रहे। तो कायनात के लिए ये रसूल रहमत है। किसके लिए रहमत है? कायनात के। कौन रहमत है? तो जब रसूल रहमत है कायनात के लिए, तो फिर रसूल के लिए कौन रहमत है? रसूल के लिए कौन? बताओ कौन रहमत है? बताओ कौन रहमत है? बताइए कहाँ लिखा है? कौन सी किताब में, कौन सी आयत में, कौन सी रिवायत में? सिर्फ सुनते हैं कि बेटी रहमत होती है, लेकिन कुरान से साबित करो कि रहमत है कि नहीं फातिमा? क्योंकि हमारे अब्बा ये कह गए थे जाते जाते बड़े मियाँ कि हमारे लिए कुरान काफी है। ये हमारे बड़े मियाँ कह गए थे हमारे लिए कुरान काफी है। कुरान से बात करो। हम तो नहीं मानते हदीस को, हम नहीं मानते रिवायत। यही तो कहा जाता है हमारे बच्चों को कुरान सुनाओ,
जब हम कुरान सुनाने आते हैं फिर सुनने नहीं आते, بے شک واہ जब हम कुरान सुनाते हैं तो फिर सुनने नहीं आते, फिर ये कहते हैं तो कुरान से भी साबित कर रहा है भाई। अब कुरान की आयत सुनो, आमीन सजदा के 28 नंबर की आयत, सूरह दिन के 28 नंबर की आयत में इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युतीकुम किफ़लैन मिन रहमतिही। हम जो हमारे पैगंबर के साथ साबित कदम रहेगा मुत्तकी मोमिन, हम उसके लिए मालूम है क्या करेंगे, किफ़लैन मिन रहमतिही, हम अपनी रहमत से 2 बेटे अता करेंगे। واہ سبحان اللہ سبحان अरे मैं اللہ तो कुरान सुना रहा हूँ, अरे मैं तो कुरान सुना रहा हूँ। तफसीर दुर्र मंसूर उलमा अहले सुन्नत के बाद मुस्तनद आलिम अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने लिखा, या रहमत से मुराद कोई और नहीं है, या रहमत से मुराद फातिमा है, 2 से मुराद हसन और हुसैन है। पता चला कायनात के लिए रसूल रहमत है, रसूल के लिए فاطمہ رحمت واہ 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 4 बेटियां और भी तो है, 3 बेटियों को साबित करो, ये रसूल के लिए कहाँ रहमत बनी। अगर ये 4 बेटियां थी तो अपना हक मांगने दरबार में क्यों नहीं गई? واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب بھیا سلیس نے ایک مجلس کی ہے، جتنے داماد آس پاس میں تھے، مظفر نگر میں تھے، چولی میں تھے، شتابدی میں تھے، سب آ گئے۔ اب جو باہر گئے وہ کیسے ہیں بیچارے، لیکن سن وہ بھی رہے ہیں، اس لیے کہ سسرال کا مسئلہ ہے، بے شک عین چل رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب حق مانگنے گئی تھی جناب سیدہ، تو یہ 3 بیٹیاں کہاں تھی؟ جب اللہ کے رسول کا جنازہ تیار ہوا تو 3 داماد کہاں تھے؟ بے شک بے شک واہ آپ جان رہے ہو کہ سننے میں بھی کر رہے ہو، پڑھنے میں بھی کر رہا ہو۔ بے شک انسان توجہ نہیں ہے۔ پھر نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جس نے بھی پڑھائی اسی کا نام بتاؤ، ہم اسی کو ماننے کو تیار ہیں۔ واہ ہائے ہائے غور نہیں کیا۔ اچھا ایک بات بتائیے، ہمارے والد ماجد کا انتقال ہوا، اللہ درجات بلند فرمائے، تو ہم اس وقت تھوڑے بہت پڑھے لکھے تھے، ہم مولوی بے مولوی سے میں تھے، یعنی ہم نماز پڑھانے کے لائق تھے، نماز پڑھاتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، اس زمانے میں ہم کھیڑی کے اندر ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا اور ہم 4 بھائی ہوتے تھے، اب 3 ہیں، اللہ ایک مختلف فرمائے۔ اب 3 بھائیوں میں سے جنازہ ہمارے ابا کا تھا، کس کا تھا؟ اور ہم ان کو نماز پڑھانے کو کہہ دیا، مختار میاں کو۔ اب یہ بتائیے کہ نماز بغیر اجازت کے پڑھائیں گے؟ نہیں کیوں؟ کیونکہ بارش میں کم ہے، اور اگر ان کی جگہ نماز میں خود پڑھا ہو تو مجھے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ نہیں کیوں؟ بارش ختم ہو گئی بات، رسول کا جنازہ بتاؤ کس نے پڑھایا؟ واہ واہ سبحان اللہ اس نے اجازت کس سے لی؟ واہ 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 اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي اللهم صل على محمد جس نے پڑھایا اس نے اجازت کس سے لی؟ کیونکہ گھر میں اگر بیٹی ذمہ دار تھی تو بیٹی کے پاس کوئی غیر محرم جا نہیں سکتا تھا۔ بے شک کوئی غیر محرم جا نہیں سکتا تھا، تو پھر نماز جنازہ پڑھنے والا اس بیٹی کا بھی محرم ہے اور ان کا بھی وارث ہے۔ بے شک جو جانے کے بعد بھی وارث ہو، کیا وہ جیتے جی وارث نہیں تھے؟ بے شک جس کا بھی امت نام بتائے گی ہم اس کو مانیں گے، پوچھے گا اپنے قاریان سے، حافظان سے، مفتیان سے، اور بھائی اس صدی میں تو ہمیں پڑھنے دیجیے گا، اس لیے کہ سید علی خامنہ کا جملہ ہے یہ صدی ہماری ہے، بے شک بے شک اس میں خوف نہ کھائیے۔ اگر خوف کھانا ہوتا تو شیطان اکبر سے کھا دے۔ دیکھیے بھی ایک جمعہ ہوا ہے ایران کے اندر، کیا ہوا ہے؟ جمعہ تو اس میں 3 دشمن ایک ساتھ مر گئے۔ کتنے دشمن ہوئے ایک جمعے میں؟ 3 کتنے مرے؟ 3 تم بھی آہستہ سے بول رہے جیسے مجھے کچھ شداری ہوئے، اور سے بولو کتنے مرے؟ 3 اب 3 میں کون مرا؟ پہلے نمبر پہ تو اسرائیل، دوسرے نمبر پہ وہ
जो 2 साल पहले मलक बने फिर रहे थे। बाबा सुभान अल्लाह ये करे मलक। से अच्छा कोई मातम नहीं करता। अब मुझे इस साल कहाँ है वो? मर गए किसी ने अरजक ना पहनी, किसी ने हथकड़ी ना डाली, हैं? किसी ने सिगरेट भी नहीं पी भाई। वो ये कहते थे जुमा कहाँ लिखा है, नंबर 2 पे वो मर गए। बेशक और तीसरे नंबर पे वो मर गए जो बंद कमरों में बैठ के कहते हैं इंडिया जुमा थोड़ा ही होता है। अपनों से ज्यादा दुश्मन देख रहे थे। यूट्यूब को भी ये कहना पड़ा, जिंदगी में मेरा चैनल इतना कभी इस्तेमाल नहीं हुआ जितना जुमे के टाइम इस्तेमाल हुआ। लेकिन सैयद अली खामनई ने ऐसे नमाज पढ़ाई, इतना सुकून नमाज में था। अली ने सुकून से नमाज पढ़ के बताया अली के माना ही ये है, न थकता है न भागता है, आता है न भागने देता है। ये बार बार कह रहा था, अरे इसी फायर कर लो। खामनई गए थे अभी नहीं मोहम्मद सुभान कमजोर मिट्टी के लिए है लेकिन इतनी कमजोर मिट्टी के नहीं। सलावत भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ा बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। लेकिन खुदा का शुक्र है अगर अपनी भावना लेके खड़े हो जाए 1-1.5 डिग्री में तो एक मलाई है, लेकिन जल्दी पानी की जरूरत है। मोहम्मद वाले आयशा जुमा हुआ तारीख बन गई। बेशक नेट में चलाने वाला कह रहा है इतना कभी नेट यूज नहीं हुआ जितना एक साथ हुआ। क्योंकि कहाँ जुमा हो रहा है और कहाँ लोग देख रहे हैं, और क्या इस्तेमाल है, क्या सुकून है, क्या इत्मीनान है, कैसा सोच के जुमा पढ़ा रहे हैं। और फिर भी मालूम है क्या कहते, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बेशक बेशक क्यों? इसलिए कि कुरान कह रहा है, सुनिए आपने आए थे नहीं सुनी, कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 30। इरशाद हो रहा है जिसने मुझे अपना रब मान लिया है। क्या मान लिया? रब। न वो डरता है ना झुकता न है, वो भागता है बेशक ना वो झुकता है। न वो रोता है। अल्लाह कह रहा है, कौन कह रहा है? अल्लाह। क़ालू रब्बुनल्लाह। ऐ गुलाम अली, अल्लाह कह रहा है जिसने मुझे अपना रब मान क्या रब रब मान लिया है। न वो डरता है ना न झुकता वो रोता है न वो भागता है। अल्लाह दीनी बातें क्यों बताए, 2-4 और बता देता। ये भी बता देता न वो भूखा उठता है वाह न वो भूखा सोता है न वो क्रीम लगा के लेटता है मेकअप करके लिखता है। वो में उसका चेहरा नूरानी है। बता देता अल्लाह। क्या मुझे दीनी के बारे में बताना था जो आगे थे। मोहम्मद कि मुझे दीनी के बारे में बताना था। यही कह रहे हैं अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। कौन है? अल्लाह वाले ये बड़े अल्लाह वाले हैं। आज के वाले साथ हैं कि अल्लाह वाले अल्लाह वाले आए कौन है? अल्लाह वाले। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है जिसने मुझे अल्लाह मान लिया ना तो वो डरेगा ना वो रोएगा ना वो भागेगा। इसका मतलब कोई डरा है, कोई डरा है। कोई रोया है, बिल्कुल कोई भागा है।
अब मुझे नहीं मालूम है कि डरा कौन है, हमें मालूम है, वो भी डरा है, डरा। हमें मालूम है कौन था। देखिए अकेले में डर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेला हूँ जा रहा हूँ डर गया, लेकिन अगर मेरे साथ आप हो माशाल्लाह नहीं सही, आप खुद ही मार के पूछते डर क्यों रहे हो कि आप तो जनपद के माफी दो और जो कायनात को माफी के बराबर ही वाह, आराम से सुनते हैं, कोई बात में वीडियो नहीं देगा इसमें सुनिए। और क्या न डरा हो न रोया हो, मुझे रोना नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन चूंकि मैं थाने का मुखबिर हूँ, क्या का मुखबिर हूँ, थाने का मुखबिर, और मुझे पकड़वाना है। मैंने थानेदार साहब से कहा कि जहाँ से रोने की आवाज आए समझ रहा वाह वाह, इसीलिए कुरान की आयत है, जब सबने कहा कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के, कुरान ने क्या कहा कि इन्नका लकाज़िबून, इनसे कह दो कि झूठे हैं। ये देख के कहते हैं क्या मौलाना फंसी है, मानते नहीं, पहचानते नहीं, समझते नहीं, देख के कहते हैं मौलाना फंसी है। अल्लाह ने क्या कहा, इनसे कहते झूठे हैं, क्या है, झूठे मक्कार मुनाफिक है। तो लिहाजा अगर कोई जाहिर में आपकी तारीफ करे तो आप पकड़ मत जाना, ये मेरी तारीफ कर रहा है, पहले ये देखना इसका बातिन कैसा है, इसका बातिन कैसा, कहीं से आपसे कोई काम तो नहीं निकालना। बेशक हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने कहा नहीं मानी जाएगी गवाही, छोड़ दो, झूठ है, ये कई बार गवाही दे चुकी इस तरह की। तो न डरते हैं न डराते हैं, न रोते हैं और ना भागते हैं। आज कैसे पता चले भाई डरा कौन था, रोया कौन था, भागा कौन था। अच्छा एक बात भाई, अकेला आदमी 40 राइफलें देख के डरेगा कि नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, डरेगा कि नहीं? लेकिन हमने देखा कि 40 उनकी तलवारें हैं और सोने वाला इतने सुकून से सोया। वाह वाह, आपकी जरूरत में अर्ज कर, लेकिन इशारा दे के जा रहा हूँ, अगर किसी के ज़हन में ना तो फिर मुझसे राब्ता कर लीजिएगा। कुरान क्या है, युद्दुल अमाना, तुम अपने वारिसीन को अमानत लौटा दो, तुम्हारा किसी को प्रिय है तो लौटा दो। अल्लाह ने अपने पैगंबर ने अपने जानशीन अली को क्या किया कि सो जाओ, सुबह ये अमानतें आपको लेनी है। क्या लेनी है? अमानत है, अमानत है। बताओ कौन सी तारीख में, मेरी सलाह करो भाई, कल परसों तरसों नरसों मुमताज भाई हमारे को प्रोग्राम तक बता देना ताकि मेरी सलाह हो जाए, ताकि फिर मैं और ज्यादा शौक से पढ़ सकूं बात। ये तो कहा अमानतें देना, ये कहीं नहीं मिला कि अमानतें पहुंची कि नहीं पहुंची। अभी तक तो यही नहीं पता चला कि अमानतें था क्या, आए हाय और नहीं किया। ये अमानत यकीन रसूल था, बेशक अल्लाह का रसूल अपना यकीन अली को देके जा रहे थे, ये अमानतें पहुंचा देना। बेशक वो अमानतें क्या है, वो अमानतें क्या, हर माँ बाप के ऊपर औलाद की अमानतें हैं। अभी के मैं इशारा करके जा रहा हूँ, मुमकिन है कि आप इत्तेफाक ना करें, मुमकिन है मेरा नजरिया था गलत हो, बाकी हो, लेकिन मेरी इस्लाह के लिए बताइएगा जरूर कि जो अमानतें रसूल देके गए थे वो थी क्या और कहीं कहा और किस चीज को भी और कैसे भी। और जो मैं देके जा रहा हूँ तो आए मैंने आपको सुना दी, युद्दुल अमानात, जो तुम्हारे पास अमानत है वो पहुंचा दो जिसकी है, ताकि सुकून की जिंदगी जी सको। अब यहाँ अमानत औलाद की, अमानत क्या अमानत है आपके ऊपर, माँ बाप के ऊपर कोई अमानत है औलाद की? अरे भाई आपसे पूछ रहे हैं, माँ बाप के ऊपर कोई अमानत है? अरे आपके ऊपर कोई अमानत है आपके अम्मी बाबा की? है, बहुत सारी अमानतें हैं, बहुत सारी, लेकिन माँ बाप के ऊपर आपकी कोई अमानत है? माँ बाप के ऊपर भी आपकी अमानत है, क्या है? बतावासो बिल हक़, बतावासो बिस सब्र,
तुम अपने वारिसीन के लिए वसीयत करो हक की और सब्र की। तो हक क्या है? विलायत अली। सब्र क्या है? हकाए हुसैन। वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। के ऊपर बच्चों की अमानत यह है कि वो अपने बच्चों को ऐसा लुक़मा खिलाए कि उनके बच्चे कभी विलायत आले मोहम्मद के खिलाफ न बोले, हकाए हुसैन के खिलाफ न बोले। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह आपको अच्छा रखे। बात तमाम हो गई। जिंदगी रही तो फिर मैं आपकी कदमताश करूंगा। मुसलसल सफर है और सुबह से मुसलसल भागदौड़ लग रही है इसी वजह से। और अभी मुझे फौरन जाना भी है, इसलिए कि मेरे इंतजार में कुछ लोग बैठे हुए। जितना वक्त मुझे दे रहा था मुझे नहीं दिया, तो मैं इनसे बच्चे कर दिया। जी बेशक। हाँ चलो, तो क्या आपने मरसिया पढ़ा शहजादी सकीना का? मेरा भी दिल चाहता है कि शहजादी के चंद मसाया किया आपने सुना। पहले तो ये दुआ करो, अल्लाह किसी बेटी के सर से उसके माँ बाप का साया करे, और खसूसी तौर पर कमसीन बेटी के सर से उसके माँ बाप का साया करे। इसलिए बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ जाता है, उनकी जिंदगी कैसे गुजरती हो कोई तारीफ करबला को। अम्मा फातिमा के जनाजे के बाद शहजादी ज़ैनब रोई, इसलिए कि अपना गम किसको सुनाए। भाइयों को सताना है, भतीजों को देखना है, भतीजियों को देखना है, भांजों को देखना है। लेकिन जब 28 रजब को करबला के लिए चली है तो कब्र मादर के दोनों हाथ रख के फातिहा पढ़ी, और फातिहा पढ़ने के बाद कहा, अम्मा लहू रुहान चमन में चलो, ज़ैनब के पास लो सकती है। अल्लाह किसी बेटी का ऐसे कोतल बना। देखिए ना आपकी खिदमत में चंद सत्र मसाइल की पेश कर रहा हूँ, उससे ज्यादा मसाइल नहीं सकता। देखिए जनाब ज़ैनब से कोई तारीख नहीं बताती कि शहजादी ज़ैनब के रास्ते में रोई, कोई तारीख नहीं बताती कि लाशह अकबर आला और शहजादी ज़ैनब के लिए किया हो, कोई तारीख नहीं बताती कि शहजादा कासिम के लाशे के लिए किया हो। बल्कि हाँ, जब अब्बा की कब्र पे वापस जाएगा तब गिरिए का आलम होगा। मालूम है क्या कहेंगे? जब अब्बा की कब्र पर बैठेगी तो अपने बाजुओं से शाले अज़ा उतार कर कहेगी, अम्मा आपकी बेटी मुसीबतें उठा के आई है, अम्मा मेरे बाजुओं में रसद बांधी गई है, अम्मा मुझे बाजारों में बुलाया गया है, अम्मा मेरा अकबर मारा गया है, अम्मा मेरा कासिम मारा गया है। अल्लाह एक फिक्रा जनाब गाजी की नस्ल करने जा रहा हूँ, एक फिक्रा पढ़ने जा रहा हूँ मसाइल को, जिस जबान बोली जा रही है। जनाब ज़ैनब ने एक फिक्रा फरमाया, अम्मा मैं नहीं रोई, अम्मा मेरा अकबर मारा गया नहीं रोई, मेरा कासिम मारा गया नहीं रोई, मेरा अम्मा मेरा असगर मारा गया नहीं रोई, अम्मा मुसीबत का वक्त था, मेरा भाई आखिरी रुखसत के लिए आया, मैंने अपने भाई को रुखसत किया, हाँ ज़ौजाए अब्बास ने रुखसत कराया, अम्मा मैं नहीं रोई। अम्मा उससे भी क़यामत का वक्त मालूम है कब था? जब रेत गुजरती हुई रेत पर मेरा बाजाया हुसैन लेता और अपने सीने पे सकीना को लिटा कर कहा, बेटी आज से दस्तूर बदल गया है, तुम अम्मा के पहलू में सोना, असगर मेरे पहलू में सोएगा। अम्मा पे उस वक्त भी नहीं रोई, अम्मा आवाज बुलंद हुई, अलान पकड़ हुसैन में करबला, अलान सुबह हुसैन में करबला, हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन जिबार कर दिए गए, काली आंधियां चली, अम्मा मैं नहीं रोई, अम्मा खैमों में आग लगी, हर बीवी रो रही थी, मैं नहीं रोई क्योंकि मैं सज्जाद को उठा कर ला रही थी, अम्मा मैं नहीं रोई, अम्मा शाम गरीबा बढ़ती चली गई, अम्मा मैं नहीं रोई, रात के सन्नाटे में शिमर आया, ताजियाना घुमाकर मेरे सर से पहली चादर उतारी और उतार के कहा, तू ही तो अली की बेटी है, तुझे देख के सूरज छिप जाता था, दूसरी चादर उतारी, अम्मा मैं
नहीं रोई, लेकिन जब मेरे सर से तीसरी चादर उतारी, अम्मा में रोई नहीं, लेकिन जब मैंने देखा अब्बास के लाशे पर चादर डाल के कहा, ले ओ गैरतदार अब्बास, ये तेरी बहन ज़ैनब के सर की आखिरी चादर है। अम्मा, मुझे बर्दाश्त न हो सका, मेरे भाई की गैरत को ललकारा गया, कब्रे फातिमा धंस गई। ए बेटी, तेरी मुसीबतों को मैंने बड़े करीब से देखा। उससे परवरदिगारा इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगारा हमारे सीने में जिस तमाम सुनी हालात को पूरा फरमा। परवरदिगारा इन पहले भी हाजिर से मुमताज करार करे। मेरे महबूब ने मरने से पहले करबला की ज़ियारत की नसीब फरमा। परवरदिगारा जन्नत की तौफीक अता की तौफीक अता फरमा। जो बलाए बलाए हादसात नज़र जादू से बीमारियां आ रही हैं, आने वाली आ चुकी हैं, सबको माफ उन सब को रद्द फरमा। परवरदिगारा जवानों की खैर फरमा। खसूसन वो जवान जो बेरुखे वतन, बेरुखे शहर, बेरुखे मुल्क है, वो जवान जो मुल्क की सरहदों पे रातों को जागते हैं और उनकी खिदमत अंजाम देते हैं। मेरे महबूब हम सब जान मान रसायत इज्जत महबूब की हिफाजत फरमाए। परवरदिगारा जब बलाए बलाए हादसात नज़र जादू से बीमारियां आ रही हैं, आने वाली आ चुकी हैं, सब को रद्द फरमा। मेरे महबूब हम सबको लुक़्मा हलाल का पाबंद करार फरमा। हम सबको लुक़्मा हराम से महफूज फरमा। जो औलाद का औलाद नगीना वसाल का फरमा। जो बीमार है जनाब नाज़िम सुनते में सबको सहत में नशिफाए ताजना फरमा। परवरदिगारा वालिदैन के साए पर शुक्र करते हुए मैं फरमा। हमारा अल्लाह बुजुर्गान और मुरादिन इकराम बिलखुसूस रहमत मौसम से लगे आपकी साया हमारे सर पर इलाही आमीन, मजलूमीन की गायब से मदद फरमा। इलाही आमीन। परवरदिगारा हमारे मुल्क की खून की राजों की तरक्की अता फरमा। हमारे मुल्क की सरहदों को आईनी सरहद करार फरमा। नबी की वाली से अल्लाह मसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम समाज का ज़हूर में हाजिर फरमा।